اچھا جی، میں نے ہم لوگ یہ فقرہ ذکر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بہت سے نبی اور رسول مبعوث فرمائے۔ اب ہم نے اس کو خوش خط لکھنا سیکھنا ہے، ٹھیک ہے، صرف لکھنا نہیں۔ دیکھیں، لکھائی لکھنے سے بہتر نہیں ہوتی بلکہ بنانے سے بہتر ہوتی ہے۔ اپنے لفظوں کو بنانا ہے، جو میں آپ لوگوں کو سمجھاتا رہتا ہوں لفظ اصول کے مطابق کہ بھائی لفظ اس طرح سے جو آپ بنائیں گے تو غلط ہے، اس طریقے سے بنائیں گے تو صحیح ہے۔ تو کوئی نہ کوئی اس کا اصول ہوتا ہے لفظ کا، کہاں سے شروع کرنا ہے، کیسے شروع کرنا ہے، درمیان کیسا ہوگا، اختتام کیسا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا سب کچھ جو اصول کے مطابق میں بتاتا ہوں، میں آپ سے بتاتا ہوں، یہ جو میں اصول کے مطابق سارا سب کچھ بتاتا ہوں، انہیں اصول کے زیر نگرانی اگر آپ لکھائی کریں گے تبھی آپ کی لکھائی بہتر ہوگی، ورنہ صرف اگر آپ لکھتے رہیں گے تو لکھتے رہنے سے لکھائی بہتر نہیں ہوتی۔ ایک اور دو تین چیزیں میں نے ساتھ میں بتائی تھی کہ دیکھیں، کوئی بھی علم و فن ایسے آسانی سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو جو ہے اس میں دلچسپی کا ہونا ضروری ہے، ذوق شوق کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کا ذوق شوق ہے تب وہ کوئی سا بھی علم و فن ہو آپ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ذوق شوق کے ساتھ دیکھیں محنت بھی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کا ذوق شوق ہے، محنت نہیں کرتے بھائی کیسے حاصل کریں گے؟ محنت بھی ساتھ میں ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ کہ توجہ، آپ نے توجہ دینی ہے۔ ایک چیز کو آپ سمجھے ہی نہیں ہے، دیکھیں ایک مثال، عام سی مثال میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں کہ کوئی سا آرٹسٹ یا کوئی سا مصور جو تصویر بناتا ہے، کبھی دیکھا ہے؟ ویڈیو میں دیکھا ہو، عام طور پہ عملی زندگی میں دیکھا ہو، جب وہ تصویر بناتا ہے تو اس کے ذہن میں کوئی خاکہ ہوتا ہے تبھی وہ کسی چیز پہ نقش کر سکتا ہے۔ اگر خاکہ نہیں ہے ذہن میں تب وہ کیسے تصویر پینٹ کرے گا، پینٹنگ کیسے بنائے گا؟ تو توجہ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جو میں یہاں پہ لفظ بناؤں، آپ نے ہاتھ کی روش کو دیکھنا ہے، لفظ کیسے بن رہا ہے، لفظ بنتے وقت میں کیسے ہاتھ کو جو ہے روش دیتا ہوں، کہاں پہ پین کو میں دباؤ دیتا ہوں، کہاں پہ میں پین کو ہلکا چلاتا ہوں، ایک یہ روش آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے۔ دوسرا، لفظ کو بنتے ہوئے یاد کرنا ہے کہ وہ لفظ کیسے بن رہا ہے، یہ بنتے ہوئے آپ نے جو ہے یاد کرنے لفظ کو۔ اس سے پہلے ہم کافی سارے پیغام سیکھ چکے ہیں، اس میں بتاتا ہوں کہ وہ پیغام آپ فقرے کی صورت میں، فقرے سے پھر جو ہے پیرائے کی صورت میں آپ نے اس کو جو ہے کیسے استعمال کرنا ہے، ان کا دھیان کیسے رکھنا ہے۔ اب دیکھیں، سب سے پہلا جو ہے اس میں کلام اللہ تعالیٰ، تو پہلا یہ جو الف ہے، یہ میں نے تیر کا نشان کیوں لگایا ہے، یہ رخ ہے، رخ کے حوالے سے سب سے پہلے پڑھا تھا۔ بنیادی باتوں میں سے ہم نے سب سے پہلی جو بات پڑھی تھی کہ بھائی اردو لکھائی شروع کرنے سے پہلے چند بنیادی باتیں ضروری ہیں، اس میں ہم نے سب سے پہلے رخ کے حوالے سے پڑھا تھا کہ اردو لکھائی تین بنیادی طور پہ تین بنیادی رخ رکھتی ہے، سیدھا رخ، کھڑا رخ اور ترچھا رخ۔ تو اب یہاں پہ یہ جو رخ آیا ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، ہم نے سیدھا لکھنا ہے۔ عموماً یہ غلطی ہوتی ہے، لفظ کو دائیں طرف گرا دیا، بائیں طرف گرا دیا، یعنی ٹیڑھا لکھ دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے الف کو سیدھا لکھنا ہے۔ دوسرا یہ کہ اول آخر میں جو نوک بن رہی ہے، یہ صرف مارکر سے ہی نہیں، پین سے بھی آپ لوگ بنا سکتے ہیں۔ اور وہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ الف کے لیے پین، پینسل، مارکر رکھتے وقت آپ نے اس کو آہستہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، آہستہ پین کو رکھا، بیچ میں تھوڑا سا دباؤ دیا اور آخر میں آہستہ سے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اول آخر اگر اس کی نوک بنے گی، ٹھیک ہے، اول آخر اگر اس کی نوک بنے گی تب یہ الف خوبصورت نظر آئے گا، ٹھیک ہے، اس کو نوک پلک کہتے ہیں۔ لفظوں میں خوبصورتی کا یہ سبب بنتی ہے نوک پلک، ورنہ اگر آپ سیدھا سیدھے کیسے الف بنا لیں گے، ایک اور الف میں اتنا پھر زیادہ فرق نہیں بچے گا۔ اس کے بعد لام کو دیکھیں، پھر سے کیا ہے، الف ہے، اس کے بعد اس کے ساتھ کون سا یہاں پر ہم پیغام ملائیں گے، با والا پیغام ہم نے پڑھا ہے، سیکھا ہے، با والا پیغام، پہلے والے سے دوسرا الف ہم تھوڑا سا نیچے چھوڑ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، مد، یہ والی کیا ہے، مد، اور آخر میں جو مد آتی ہے وہ ہمیشہ لائن پر رہتی ہے۔ تو یہ اس میں دیکھیں ایک بھی کوئی نیا حرف آپ لوگوں کے لیے، اس میں کوئی ایک بھی حرف آپ لوگوں کے لیے نیا نہیں ہے۔ رخ کے حوالے سے ہم لوگوں نے سیکھا، با کا پیغام سیکھا، مد سیکھی۔ اس کے بعد فعال لفظ کو دیکھیں، اس سہائن کی طرف آپ لوگوں نے پوری توجہ رکھنی ہے۔ اس سہائن میں جو عموماً سے غلطی ہوتی ہے وہ میں بتاتا ہوں کیسے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، ایک چھوٹا سا کھڑا زبر جتنا الف لگا دینا ہے، ٹھیک، اس کے بعد الٹا ٹک کا نشان لگانا ہے، جس طرح ایک ٹک کا نشان ہوتا ہے اس کو ہم نے الٹا لگانا ہے۔ الٹا ٹک کا نشان لگانے کے بعد اس کے ساتھ ہم نے دال
इस जगह ये टिक के निशान के अख्ताम पर दाल बना लेंगे, तब क्या होगा, नोक हमारे पास इस तरफ बनेगी। अमूमन क्या करते हैं, यहाँ पे गोलाई देते हुए पेन को यहाँ पे रोकते हैं और उसके बाद ऐसे नोक दाएं तरफ बन जाती है। ये गलत तरीके का है, ठीक है। यहाँ पे हमने टिक का निशान बनाया, अब यहाँ से हमने क्या करना है, दाल बनानी है। दाल बनाई, आगे ये कशीरे वाला लफ्ज़ है, तवज्जो है अपना, आगे क्या है, कशीरे वाला लफ्ज़ है। कशीरे वाला लफ्ज़ वो जिसको हम खींच कर लिखते हैं, और इसको हमने कैसे खींचना है, सबसे पहले जिस तरह के हम काफ बनाते हैं, काफ का ये जो मरकज़ बनाते हैं ये बनाएंगे, काफ का मरकज़ बनाया। इसके बाद जिस तरह के हम बा लिखते हैं, बा की सतह बनाएंगे और उसके बाद ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ठीक है, समझ आई। इसके बाद अलिफ, ये अलिफ को थोड़ा सा आगे ले जाना है, नुक्ता लगाएंगे यहाँ पर, और उसके बाद दायरा। दायरा हमेशा लाइन से नीचे आता है, यानी मतलब ये कि असल उसूल तो यह है कि बाकी हर्फों से थोड़ा सा नीचे आता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे हम तमाम हर्फों को लाइन पे लिखते हैं तो दायरा लाइन से नीचे हम कहते हैं कि भाई लाइन से नीचे आता है, क्योंकि बाकी हुरूफ लाइन पर आ रहे हैं। असल उसूल क्या है कि बाकी हर्फों से दायरा थोड़ा सा नीचे आता है क्योंकि बड़े हुरूफ में से है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमने खड़ा सा ज़बर छोटा सा लगा देना है। इसके बाद नून बढ़ियाने के लिए देखिए, सबसे पहले क्या है, अलिफ छोटा सा हमने लगाना है, और कौन सा, सीधा रुख है, सीधा डायरेक्टली हमने शुरू नहीं करना, क्योंकि आप सीख रहे हैं, आपने दर्जा बदर्जा लफ्ज़ को बनाना है। हर एक हर्फ, हर एक पैगाम बनाने के बाद पेन को उठाना है, तभी लफ्ज़ आपके पास ठीक बनेगा। लफ्ज़ जब आप ठीक बना लेंगे उसके बाद एक ही मरतबा में लिखना आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। अब देखिए जी, खड़ा ज़बान लिखने के बाद मैंने पेन उठाया, उसके बाद क्या है, तिरछा रुख, फिलहाल हम इसको रुख कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी इब्तिदा है। सीधा रुख, इसके बाद तिरछा रुख, उसके बाद क्या है, पड़ा रुख। लाइन के ऊपर मुकम्मल हमने लिख लेना है। और ये जगह भरने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जगह खाली होती है, जगह भरने के लिए ये चीज़ मैंने लगा दी, आप ना लगाएं कोई मसला नहीं। इसके बाद लफ्ज़ है इंसानों, तो ये अलिफ लिख लें, कि पेन से ही भाई नहीं पता, ठीक है। अलिफ को उसी तरीके पे बना लेना है। नून के लिए देखिए, सीधा अलिफ छोटा सा, इसके बाद एक शोशा, क्योंकि ये पैगाम यहाँ पे किरदार अदा करेगा ना नून और सीन को मिलाने के लिए, ठीक, ये एक किस्म का नून, इसके बाद एक शोशा, छोटी मत, आखिर में क्या है, बा अलिफ का पैबंद है। हमने सीखा है ना कि बा अलिफ का पैबंद। अब ये मैंने क्यों एक एक हर्फ को इतना समझाया कि बा का पैबंद है, छोटी मत है, इसका मकसद ये है कि इस जैसे हुरूफ जहाँ कहीं पे भी आए, यानी एक किस्म का, अगर मैं आपको ये बताऊँ कि तहरीर में, लिखाई में यकसानियत का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यकसानियत का क्या मतलब, यानी एक जैसे जो हुरूफ है, जिस तरह के हर्फ बा को ले लेते हैं, अगर हम कहीं पे ता लिखते हैं तो उसकी शक्ल मुख्तलिफ तो नहीं बनाएंगे, जिस तरह बा की शक्ल है उसी तरह ता की शक्ल होगी, लेकिन फर्क सिर्फ नुक्तों का ही होगा। अब जो हमने बा का पैबंद पढ़ा है, ठीक है, सिर्फ नुक्तों की तब्दीली का फर्क होता है। जिस तरह के अगर ये बा अलिफ है ना, ऊपर दो नुक्ते लगाने से क्या बन जाएगा, ता अलिफ बन जाएगा। फिर अगर आप कहें कि मैंने बा का पैबंद तो सीखा है, ता को आप बड़ा करके लिख कर ले आए कि भाई ये सर ने नहीं बताया, मैंने तो बताया था कि भाई सिर्फ नुक्तों की तब्दीली है, बा जहाँ कहीं पे आए एक किस्म का बनता है, ठीक है। फिर आपने तहरीर में देखना है कि इस किस्म के पैबंद कहाँ पे आ रहे हैं, और उनमें फिर आपने ये गलती नहीं करनी कि एक को ठीक लिखा, दूसरे को बड़ा लिखा, तीसरे को छोटा लिखा, और कहीं पे किनारा बना दिया, ये गलती फिर आप लोगों ने नहीं करनी, बल्कि क्या करना है, यकसा लिखना है, बराबर लिखना है। इसके बाद नून वाव को लिखते हैं जी। सबसे पहले क्या करना है, हमने एक अलिफ सीधा सा लगा लेना है, पेन को उठा लिया, इसके बाद वाव को, वाव का सिरा भरा हुआ आएगा। वाव का सिरा बना लेने के बाद देखिए मैंने एक छोटी सी तिरछी लाइन लगाई है, यहाँ पे वाव के सिरे के नीचे खाली जगह बचनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, अक्सर यहाँ से लेकर आ जाते हैं आगे की तरफ, ठीक है, ये खराब कर देते हैं। सबसे पहले वाव का सिरा बनाना है, दाएं तरफ थोड़ा सा निकाल कर ले आना है, उसके बाद तिरछी लाइन, ये वाव के सिरे के नीचे थोड़ी सी खाली जगह बची। इसके बाद देखें नून का दायरा, सबसे पहले मैंने क्या करना है, छोटा सा अलिफ, इसके बाद गोलाई ही गोलाई बनानी है, और गोलाई में क्या ख्याल रखना है कि दायरा शुरू और आखिर में बराबर नहीं होता, बल्कि इख्तिताम शुरू से नीचे होता है। इसके बाद काफ चुकी की को हम
इस तरह लिखेंगे, लेकिन मरकज इसके ऊपर लगाएंगे। अलिफ थोड़ा सा आगे लेकर आना है, नुक्ता लगाया, दायरा, इसके बाद काफ का मरकज लिया कर यहाँ पर हमने मिला देना है, ना यहाँ से गुजारना है और ना ही एक मिलाए बगैर छोड़ देना भी गलत, मिला के आगे गुजार देना भी गलत। इसके बाद हिदायत लफ्ज़ को देखिए, हमने बा और दाल लफ्ज़ सीखा है, ये पैगाम सीखा है ना। हाँ में सिर्फ इतना है कि इससे पहले यहाँ पे जो पेन रखते हैं, बा को सीधा उतार कर ले आते हैं, हाँ को थोड़ा सा मरोड़ते हैं दाएं तरफ, ठीक है, उसके बाद ऊपर की तरफ ले जाते हैं। तो देखें ये हाँ हमें थोड़ी सी दाएं तरफ मरोड़नी है, उसके बाद ऊपर की तरफ ले जाना है और तिरछी लाइन यहाँ पे हाथ के लटकन लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद लफ्ज़ के दरमियान में अगर अलिफ आए तो वो हमने लाइन से ऊपर लिखना है। लफ्ज़ के दरमियान में जब अलिफ आ जाए उसको खूबसूरती के लिहाज से हम लाइन से थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे ताकि लफ्ज़ एक पढ़ा जाए और उसमें खूबसूरती भी बरकरार रहे। इसके बाद देखिए ये छोटा मद हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, छोटा मद पढ़ा है ना। इसके बाद यह हर्फ बा, ये भी हमने पढ़ी है कि लाइन के साथ आती है। मैंने अक्सर बताया कि भाई ये लाइन से टकराए नहीं, लाइन से टकराने का मेरा क्या मकसद होता है कि लाइन के साथ बराबर जाए, ऊपर से ले आकर इसके साथ टकराना नहीं है, ये तो फिर गिर जाएगी, लाइन के साथ चलना है, ठीक है। ये देखिए लाइन के साथ हमने चलना होगा, इसके बरक्स आप जो भी सूरत इसकी बनाएंगे वो गलत तस्वर की जाएगी। इसके बाद और लफ्ज़ है, ये हम अलिफ सीख चुके हैं, वाव सीख चुके हैं और उसके बाद राम में वाव के बराबर लगा देंगे। रहनुमाई लफ्ज़ को देखें, इसमें भी आपसे गलती हो सकती है, थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज़ है, ज़्यादा नहीं, लेकिन ये भी समझने के बाद इंशाल्लाह मुश्किल नहीं रहेगा। रहनुमाई में सबसे पहले हमने रा लगा लेनी है, फिर यही हा हमने लगानी है लेकिन छोटी सी, ये लगाई, इसके बाद छोटी मद बनानी है, बस उसके बाद मीम बना देना। मीम के लिए नुक्ता इसके साथ वापस, और बा का जो पैबंद है, ये बा का पैबंद ही हम इसको कहेंगे, आखिर तक हम इसको बा का पैबंद कहेंगे, क्योंकि ये बा ही की तरह बनता है, बा अलिफ की तरह बनता है, ठीक है। इसलिए आसानी के लिए हम अपनी आसानी के लिए इसको बा का पैबंद कहेंगे। अब यहाँ पर हमने हा की लटकन लगा दी है, नून का नुक्ता, छोटी आ को देखिए, पहले हमने दाल बनानी है, नुक्ता, इसके बाद दायरा, फिर कर चुके, मैं थोड़ा सा आगे जल्दी में समझाऊंगा। इसके बाद अच्छा के लिए ये जो मैंने दाल लिखा है उसके बाद दायरा, इसमें आप लोगों ने गलती ये नहीं करनी कि दाल को आगे नहीं गुजार कर ले जाने, इस किस्म की कोई अजीब चीज़ नहीं बना कर लेनी। दाल देखें बराबर होती है, ये दोनों नो के बराबर होती है, हमने दाल ही बनानी है यहाँ पर, ये देखें बराबर, इसके बाद नुक्ता और उसके बाद इसी के नीचे हमने दायरा बना लेना है। के लिए लफ्ज़ को देखें, लाइन के दरमियान में लिखना है अलिफ, इसके बाद क्या है छोटी मद, उसके बाद क्या है बा अलिफ का पैबंद, ठीक है। इसके बाद हमने पेन को उठा लिया, फिर से क्या है छोटी मद, तिरछा रो, फिर पढ़ा, ठीक, ये के लिए लफ्ज़, ठीक है। मुश्किल तो नहीं है ना, हर एक पैबंद बनाने के बाद अपने पेन को उठाने तब आपके लिए आसान होगा। इसके बाद बहुत लफ्ज़ को देखें, हमने छोटी आ की तरह थोड़ी सी यहाँ पे गोलाई बना देनी है, लेकिन ये जो गोलाई यहाँ पे गिर रही होती है ये सीधा रुख फिर आखिर में पकड़े। इसके बाद उल्टी मद बनानी है और यहाँ पे पड़ी रा, हर तार को लाइन के साथ उसी तरह मिला देना जो हम पढ़ चुके हैं। इस हा के लिए ये वाली लटकन नहीं होती, इस हा के लिए होती है, इस हा के लिए नहीं होती। आपने कहा कि क्यों नहीं लगाई, इस हा के लिए ये वाली लटकन नहीं होती। अगर आपके लिए कहीं पे मसला बनता है तो आप फिर लगा भी सकते हैं, लेकिन उसूल यह है कि नहीं होती। इसके बाद सीन बड़ी से देखिए, एक शोशा, दूसरा तिरछा पड़ा, ठीक है। नबी लफ्ज़ देखिए, हमने मद बनानी है, दूसरी लाइन को थोड़ा सा ज़्यादा आगे ले आना है बनिस्बत पहली लाइन के, बीच में नुक्ता, इसके बाद क्या है नून का दायरा, नून का नुक्ता यहाँ पे लगाना है, बा का नुक्ता यहाँ पे, अक्सर बनी की तरह फिर ये कर देते हैं, यहाँ पे नुक्ता यहाँ पे नुक्ता, ये तो बनी लफ्ज़ होता है। नबी लफ्ज़ जो आप लिखेंगे उसमें नुक्ता आपने नून के लिए यहाँ पे, बाकी यहाँ पे लगाना होता है, ठीक है। इसके बाद और लफ्ज़ उसी तरह लिख लेना है, वाव सीन वाव को देखें, एक शोशा, दूसरा बराबर आने चाहिए दोनों, इसके बाद वाव का से उसी तरह भरा हुआ, तिरछी लाइन। नाम के लिए अलिफ सीधा लगाना है, लाइन से ऊपर छोड़ देना है, उसके बाद दायरा, ठीक है। इसके बाद मद और उस लफ्ज़ को देखें, मीम कौन सा बनाएंगे नुक्ते से, नुक्ता लगाया वापस
फिर क्या है छोटी मत आइन को यहाँ पे फिर से वही उसी तरीके से डालेंगे, उल्टा टिक का निशान, यहाँ से दाल और उसके बाद वाव आइन के नौ के नीचे बनाएंगे। ता उसी तरह फरमाए लफ्ज़ का कशीदा उसी तरह बनाएंगे जो मैंने बताया कि ज़रा सा नीचे काफ के मरकज़ की तरह आगे उतरा जितना कि बाकी सतह होती है, उसके बाद रा। अच्छा यहाँ पे ये जो कशीदा है लाइन से ऊपर बनाना है, अगर आप बराबर कर देते हैं तो ये दाल फिर तस्वर किया जाएगा, अगर ये बराबर हो गए तो ये दाल होता है इस तरह, ठीक है। रा इस कशीदे से ज़रा सा नीचे होता है। मीम देखें नुक्ता लाइन से ऊपर हमने बनाई, फिर इसके साथ बा का पैगाम। तो बहरहाल इसमें से काफ़ी सारी बातें वो है कि जो हम सीख चुके हैं, आपने किस तरह इनमें जो है इनको अपनाना है वो तरीका हमने सीखा है। अब आप इसके बाद अगर पैगाम भी लिखेंगे वो भी आपने इस तरीके से लिखना है। पहले में देखिए जितना भी वक्त लगे लफ्ज़ को बनाने में मसला कोई नहीं है, जितना भी वक्त लगे आप बेशक थोड़ा लिखें, ठीक है, लेकिन वो बना के लिखें, सिर्फ जान छुड़ाने वाला काम ना करें, सिर्फ ना लिखें बल्कि बना के लिखें। समझ आई? फिर आप लोगों का